Unacademy. Let's crack it. Yes, probably you can even ask about your doubt. I've been on call. Shivam has answered B. Can I get any more answers? Then I'll give you a logical solution as well of this question. Okay? And do ask me for all logical questions whenever you feel like. Khushi also says it is 300. So let's start doing it. 10 people start a club. If there had been 5 more in the group, the initial expenses to each means it's kind of an average. When expenses to each person we talk about, it's an average, right? It would have been 100 less. So what was the initial cost per person? So Shibam, Khushi and Kishan, they all have answered B, which is equal to 300. Let's talk about both the solutions, normal solution, conventional solution, and the logical one. So initially, the total number of people were equal to 10. And how much was being paid by each person, let's call that A. You can also call it average. As I said, whatever is paid by every person is called the average. उसी को हम लोग each बोल देते हैं. Now he says, had there been 5 more people, अगर 5 लोग और होते तो ये 15 हो गया होता. वो कह रहा है इस केस में चार्जेस आपके 100 लेस होते. That means A minus 100. That means previously the total expense were 10 into A. Now the total expense are 15 into A minus 100. और total expenses तो बराबर है ना, equal. The only thing that has changed is because number of people increased, तो per person cost went down. हर आदमी का per person कम हो गया क्योंकि number of people increase हो गया. So I'll just equate the total charges. 15 into A minus 100 is equal to 10A. 5 से 2 पे cancel out हो जाएगा, 3 पे. I get 2A is equal to 3A minus 300, which is equal to A is equal to 300. So what is the question asking you? What was the initial per person? So I can say that the initial cost per person was A, which is equal to 300, and that is the right answer for this question. Is there any doubt that anyone is having? किसी को कोई problem आ रही है यहाँ पे? Anyone is having any problem? If there is no problem, then I'll talk about a logical solution of this question. Without doing much of calculations, you could have done this question by using a logic which is generally used in percentages. Listen to that very very carefully. और मुझे एंड में बताइएगा भी जरूर आपको समझ आया कि नहीं. परसेंटेजेस में कॉन्सेप्ट होता है कि अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट सेम है, जैसे आप यहां देख रहे हैं पहले दोनों का और बाद वाले दोनों का प्रोडक्ट सेम है. अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट सेम है तो सीधी सीधी बात यह है कि अगर एक नंबर इन दोनों में से इंक्रीज होगा तो दूसरा डिक्रीज होगा. आई होप यू ऑल एग्री विद मी ऑन दिस. जैसे यहां पे नंबर ऑफ पीपल दे हैव इंक्रीज्ड, तो इसका मतलब पर पर्सन कॉस्ट मस्ट हैव डिक्रीज्ड. भाई टोटल खर्चा अगर सेम है, प्रोडक्ट अगर सेम है, एक नंबर बढ़ा होगा तो दूसरा घट जाएगा. तो इसका एक सीधा सा रूल होता है, मैं आपको सीधा रूल बताता हूं. वो ये बताएंगे जरा बढ़ा कितने से है. 10 has increased by 5. So can I say it has increased by 1 by 2? Right everyone? 10 को 5 से बढ़ा रहे हो, तो 10 को अगर 5 से बढ़ा दोगे तो इसका मतलब 10 पे 5 1 by 2 का इंक्रीज है. तो अगर एक नंबर में 1 by 2 का इंक्रीज है तो दूसरे नंबर में 1 by 3 का डिक्रीज होगा. अगर वो 1 by 3 का इंक्रीज होता तो डिक्रीज 1 by 4 का होता. अगर इंक्रीज 1 by 5 का होता तो डिक्रीज 1 by 6 का होता. Whatever is the increase in one number, अगर वो 1 by x है तो डिक्रीज 1 by x plus 1 होता है हमेशा. तो यहां डिक्रीज अगर 1 by 3 है और क्वेश्चन कह रहा है कि 100 का डिक्रीज है. अगर डिक्रीज 1 by 3 और क्वेश्चन 100 का डिक्रीज कह रहा है, इसका मतलब नंबर 300 था. क्योंकि किसका 1/3 100 होता है? सिर्फ 300 का ही 1/3 100 होता है. सो माय आंसर वुड हैव बीन 300 फॉर दिस क्वेश्चन. मैं एक बार ये कॉन्सेप्ट फिर रिपीट कर देता हूं. अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, एक नंबर इनमें से इंक्रीज होता है 1 by a से, तो दूसरा नंबर डिक्रीज होगा 1 by a plus 1 से. ये हमेशा के लिए ट्रू है. दिस इज ऑलवेज ट्रू. जैसे मैं आपको एक आइडिया देता हूं इसके इसी क्वेश्चन में. मान लीजिए क्वेश्चन आपको यह कह रहा होता कि हैड देयर बीन 2 more पीपल इन द ग्रुप. यहां 5 की बजाय 2 लिखा होता तो मेरा आंसर क्या आता? अगर आप 10 में 2 का इंक्रीज करेंगे तो 10 में 2 का इंक्रीज कितना होता है? कहने से 1 by 5. भाई 10 में अगर आप 2 का इंक्रीज कर रहे हैं तो 1 by 5 का इंक्रीज हो रहा है. इसका मतलब डिक्रीज कितना होना चाहिए? 1 by 6 का.
और अगर 1/6 का डिक्रीज 100 है तो इनिशियल कितना होना चाहिए 600। आप इक्वेशन बना के सॉल्व करके देखना, अगर 15 की जगह आप 12 लिखोगे ना तो आपकी इक्वेशन का आंसर पक्का a इज इक्वल टू 600 देगा। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू लर्न थ्रू दिस स्मॉल क्वेश्चन। क्वेश्चन हमने छोटा सा करा है, लेकिन इसके थ्रू जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया वो ये कि प्रोडक्ट अगर दो नंबर्स का कांस्टेंट है, उनमें से एक 1/a से बढ़ता है तो दूसरा 1/a+1 से कम होगा। एंड आई विल बी डिस्कसिंग सच कॉन्सेप्ट्स इन ईच एंड एवरी क्वेश्चन। हालांकि क्वेश्चन आसान है, वैसे भी आराम से हो जा रहा है, लेकिन पर्पस हमारा सीखने का है, सो जस्ट करते रहिए इसी तरीके से मेरे साथ। आई एम श्योर यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। आई विल मूव अहेड टू क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर स्क्रीन। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, प्लीज आंसर दीजिए। सिर्फ किशन ही बोल रहे हैं, किशन ने बोला है यस, और कोई नहीं बोल रहे हैं। सो इफ पॉसिबल प्लीज कीप रेस्पॉन्डिंग ऑन द चैट बॉक्स, मुझे भी आइडिया लगता रहेगा दैट यू गाइस आर लिसनिंग टू मी। Here is question number 3. What is the answer? The average of 5 consecutive numbers is n. If the next two numbers are also included, the average will increase by how much? Can I have some answers before I discuss this question? Once again, Shibam has answered as A. Very good, Shibam. Can we have more answers here? Very, very simple question. Average of 5 consecutive numbers is n. If the next two numbers are also included, the average will change by how much? Only Shibam answered. I expected more answers though. Kishan has answered. Kishan says it would increase by 1. Very good, Kishan. Shibam has answered A. Kishan has answered B. Let's start doing it. Okay? सबसे पहले अगर मैं ये क्वेश्चन एग्जाम में कर रहा होता तो मेरा करने का तरीका क्या है, वो ये है, मैं कोई भी 5 कंसेक्यूटिव नंबर ले लूंगा, 1, 2, 3, 4 और 5। ठीक है? शिवम ऑल्सो सेज इट इज बी। ओके शिवम, लेट्स चेक। 1, 2, 3, 4, 5 5 नंबर्स ले लेता हूं, इनका एवरेज चेक करता हूं। द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स केम आउट टू बी 3। द एवरेज ऑफ दीज नंबर्स केम आउट टू बी 3। वो कहता अगर मैं नेक्स्ट टू नंबर्स भी इंक्लूड कर लूं, तो नेक्स्ट टू नंबर्स भी इंक्लूड कर लेता हूं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हो गया। और अगर 1, 2, 3, 4, 5, 6 है तो इनका एवरेज निकाल के देखता हूं तो वो एवरेज आता है 4। राइट? जो एवरेज पहले 3 था अब वो एवरेज 4 आ गया है। एवरेज 3 से 4 हो गया, इसका मतलब एवरेज में क्या चेंज आया है? इट हैज रिमेन्ड द सेम? नो। इट हैज इंक्रीज्ड बाय 1? यस। इट हैज इंक्रीज्ड बाय 14? नो। इट हैज इंक्रीज्ड बाय 2? नो। या कोई तो मिस्टेक है। अच्छा, शायद यहां पे ये कहना चाह रहा है इट विल इंक्रीज बाय 1, 4, तो ये कोई मिस्टेक है, मेरे ख्याल से ये कोई मिस्टेक है। सो इंक्रीज बाय 1 इज द राइट आंसर। अब यहां पे एक सवाल आप में से किसी का हो सकता है, सर आपने 1, 2, 3, 4, 5 ले, क्या पता कुछ और लेने पे इंक्रीज बाय 2 आ जाता। मैं कहूंगा कभी नहीं आता। क्यों नहीं आता? अगर कुछ और लेने पे इंक्रीज बाय 2 भी आ जाता, इसका मतलब ऐसे भी केस है जहां इंक्रीज बाय 1 आता है, ऐसे भी केस है जहां इंक्रीज बाय 2 आता है, तो फिर मैं आंसर क्या दूंगा? तो वो पॉसिबल ही नहीं है, फिर तो क्वेश्चन ही गलत होता अगर ऐसा होता तो। So one thing is absolutely sure, in this case my answer will be equal to increase by 1 because I have got one of the cases as increase by 1। ठीक है? ये मेरा आंसर है। दूसरी बात, अब दूसरी बात एक और आती है यहां पे निकल के, एवरेज एक ही टर्म शिफ्ट होगा आगे। बिल्कुल सही बात है किशन, एक ही टर्म शिफ्ट होगा। हालांकि मैं एक और चीज के बारे में बात करने जा रहा हूं, वो ये, क्या यही तरीका है क्वेश्चन को करने का? नहीं, ऑफ कोर्स एक जनरल तरीका भी है। जनरल तरीका ये है, मैं नंबर्स मान लेता हूं a+1, a+2, a+3, a+4। इनका एवरेज कैसे निकालोगे? सबको ऐड कर दो तो ये आ जाता है 5a+10, और डिवाइड कर दो 5 से तो एवरेज आती है आपकी a+2। फिर वो कहता है अगले दो नंबर्स भी ले लो, देन आई विल हैव a+1, a+2, a+3, a+4, a+5, a+6, और इनका जब मैं एवरेज लूंगा तो इन सबका सम आएगा 7a प्लस कुछ आएगा। ठीक है? एंड दैट विल बी डिवाइडेड बाय 7। अब ये 7a प्लस क्या आएगा? अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 7a + 21, और इसकी वैल्यू आएगी आपकी a+3। तो ध्यान से देखिए, जो एवरेज पहले a+2 हुआ करती थी वो एवरेज अब a+3 हो गई है। दैट मींस इट हैज इंक्रीज्ड बाय 1। सो दैट इज माय राइट आंसर। लेकिन ये कन्वेंशनल तरीका है, डेफिनेटली मस्ट नॉट बी डन इन द एग्जाम टाइम।
एग्जाम में करने का सबसे बेहतर तरीका ये है, हालांकि ये भी एक तरीका, आई वुड नेवर से कि आपको करना चाहिए, लेकिन मैं आपको एक और तीसरी भी चीज बताऊंगा। जैसा मैंने बोला था, हर क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट भी डिस्कस करेंगे साथ साथ, ताकि बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आए। यहां बात कर रहे हैं 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स की। 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर आप लें, 1 2 3 4 5 टाइप, मैं कहता हूं कोई 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर जरा लो, तो वो होंगे 2 4 6 8 और 10। 5 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स लो, 1 3 5 7 9। 5 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स लो 5 के, 5 10 15 20 25। इन ऑल दीज केसेस द मिडिल टर्म विल बी द एवरेज। ठीक है, तो क्या कंडीशन है मिडिल टर्म को एवरेज होने का? मिडिल टर्म का एवरेज होने का एक ही कंडीशन है, वो ये कि अगर वो नंबर्स एपी सीरीज में है, अगर वो नंबर एपी सीरीज में है, तो ऐसे केस में जब जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, आपकी मिडिल टर्म ही एवरेज बनेगी। अगर नंबर एपी सीरीज में है, तो जब जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, मिडिल नंबर आपकी सीरीज वो बनेगी एवरेज। जैसे 1 2 3 4 5 5 टर्म्स है, ऑड हो गई, तो इसका मतलब बीच वाली टर्म, थर्ड टर्म आपकी जो है वो एवरेज बनेगी। आप 7 ले लो, 1 2 3 4 5 6 7, तो मिडिल 4 हो जाएगी। देखा, एवरेज में इसीलिए तो एक का इंक्रीज आ रहा है। अगर मैं 9 टर्म्स ले लूं, 8 और 9 भी ले लूं, एवरेज 5 हो जाएगी। एवरेज आपकी देखना एक और बढ़ जाएगी। और ये आप एवरेज, आप कंसेक्यूटिव इवन लो, कंसेक्यूटिव ऑड लो, कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स लो किसी नंबर के, ये हमेशा ट्रू है। जस्ट कीप इट इन माइंड। बहुत सारे क्वेश्चंस आपके आसान कर देगा ये। कैट में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आए जहां पे अगर आपको इस चीज का पता है ना, यू कैन इमीडिएटली आंसर द क्वेश्चन लाइक दिस। लास्ट ईयर ही एक क्वेश्चन आया था, और जो अगर आप जनरल तरीके से करो तो 5-6 मिनट का क्वेश्चन था। इंटरनेट पे सर्च करना, कैट का क्वेश्चन है कि अगर मैं ए बी बी टाइप के सारे नंबर्स लिख डालूं, उनका एवरेज क्या होगा। सोच के देखिए कितना मुश्किल क्वेश्चन है। ये चीज आपको पता है तो आप फटाफट उस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, हालांकि कुछ का आपका सवाल ये भी आ रहा होगा, सर अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती क्यों, तो क्या होता? अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स होती ना, तो बीच वाली दो टर्म्स का एवरेज आपका एवरेज होता। जैसे अगर मैं कह दूं 1 2 3 4, तो इनका एवरेज क्या आएगा? 2 + 3/2, 2.5। अगर मैं कह रहा हूं 2 4 6 8 12, 6 टर्म्स हो गई, तो एवरेज क्या आएगा? बीच वाली दो का एवरेज, दैट इज 6 + 8/2, 7। तो जब जब मेरे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, बीच वाली दो का एवरेज एवरेज बनेगा। जब जब ऑड नंबर ऑफ टर्म्स होंगी, बीच वाली टर्म एवरेज बनेगा। दिस इज ऑलवेज ट्रू व्हेनेवर द नंबर ऑफ टर्म्स आर इन एपी सीरीज, राइट? I hope you all understood this question as well. Once again, I repeat, we are doing some questions based upon averages, जो कैट के स्टैंडर्ड के हैं बिल्कुल, starting with the basic concepts, going to the difficult ones. लेकिन पर्पस ये है कि हम लोग सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाए। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट क्या आता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। गिव मी द आंसर फटाफट से। व्हाट इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नाउ? The table below shows the temperatures in degrees. The noontime temperature is given. M represents the median, F represents which occurs the most, A represents the arithmetic mean of the 7 temperatures. Which of the following is the correct order of M, F and A? यहां भी मैं आपको बहुत बेहतरीन चीज बताऊंगा। इट्स अ क्वेश्चन बेस्ड अपॉन मीन, मीडियन, और एक बात कर रहा है दैट अकर्स द मोस्ट। आई एम अज्यूमिंग कि आप सबको पता है, उसे मोड कहते हैं। सो अल्टीमेटली ये मीन, मीडियन और मोड के बारे में बात कर रहा है। बिफोर आई डिस्कस इट फर्दर, पहले मैं आप लोगों का आंसर देखना चाह रहा हूं। व्हाट इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? He's talking about mean, median, mode here. So which is the correct order for that? What is the right answer according to you? Till now, Kishan has been answering for almost all the questions. Kishan got B. Very good, Kishan. Even Shibam has been answering for almost every question. Khushi has been answering for many of them. But I'm not getting any answer from anyone else. Can I expect at least 5 more people answering the question? Shibam also has answered. शिवम ने परंपरा को बरकरार रखा है। आनंद हैज आंसर्ड, वेरी गुड आनंद, वेलकम।
खुशी हैज आंसर्ड, आई हैव गॉट 4 आंसर्स, चारों ने बी आंसर दिया है, ब्यूटीफुल। धर्मेंद्र ऑल्सो हैज आंसर्ड एज बी, बहुत बढ़िया। 5 लोगों ने आंसर कर दिया, मैंने 5 बोला था, हाँ, हालांकि मैंने उनके अलावा 5 और बोला था, बट स्टिल गुड टू सी सो मेनी आंसर्स, वेरी गुड गाइस। चलिए जी, लेट्स टॉक अबाउट इट। द टेबल बिलो शोज द टेम्परेचर इन डिग्रीज। वो कह रहा है एम रिप्रेजेंट्स द मीडियन। आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर दिस वर्ड मीडियन। अगर ये कैट 2023 की प्रिपरेशन होती ना, तो मैं आप लोगों को बोल देता छोड़ दो यार मीन मीडियन मोड, ठीक है, सिर्फ एवरेजेस पढ़ लो, मीडियन और मोड छोड़ दो। बट सभी ध्यान से सुनना, कैट 2023 के तीनों स्लॉट्स में एक सेट एलआरडीआई के अंदर आ गया जिसके अंदर मीन मीडियन मोड तीनों यूज किए, उसने तीनों स्लॉट्स में आया। स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, तीनों के अंदर उसने क्वेश्चन पूछा जिसमें मीडियन का भी यूज हुआ, मोड का भी यूज हुआ। इसका मतलब यह कि अब हल्के में नहीं ले सकते, वरना मैं छोड़ देता कि छोड़ो यार मीडियन मोड क्यों करने, कैट पूछता ही नहीं। इससे पहले कैट ने पिछले 10-15 साल में एक क्वेश्चन नहीं पूछा, लास्ट ईयर एलआरडीआई के 3 सेट्स पूछ डाले। इसका मतलब पढ़ना तो पड़ेगा। बात आती है मीडियन की। मीडियन क्या होता है? मीडियन इज द मिडल वैल्यू, राइट? जो वैल्यू मिडल में आती है उसको हम लोग बोलते हैं, ओके? तो अब बात करते हैं मिडल वैल्यू के बारे में। मिडल वैल्यू क्या होती है? मिडल वैल्यू इज विच लाइज एग्जैक्टली इन द मिडल, ठीक है? अब आप कह रहे हो मिडल में तो सर ये दिख रही है मेरे को, 3 इधर है 3 इधर है, लेकिन ये तो फिर मैं किसी भी ऑर्डर में लिख देता, कोई और मिडल में आ जाती, ठीक है? इसी के लिए मैं ये बात कहता हूं कि पहले उनको अरेंज करो। अरेंज कैसे? असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, जो भी मन करे लगा लो। चलिए लगाते हैं। समझ ही नहीं आ रहा था, हाँ एकदम से यार दिक्कत आएगी, कभी नहीं देखा उस पर बेस्ड क्वेश्चन, सडनली आ गया, दिक्कत आनी ही। चलिए इनको असेंडिंग ऑर्डर में मैं लगाता हूं। सबसे पहले आएगा 66, फिर आएगा 69, फिर आएगा 70, उसके बाद आएगा 75, फिर आएगा 77, फिर आया 78 और फिर आया 78। आई गॉट योर पॉइंट शिवम, मैं समझ गया आप बात कर रहे हैं कैट वाले सेट्स के बारे में कि डिफिकल्ट थे इसलिए समझ में नहीं आ रहे थे। हाँ जी, तो इसके हिसाब से मीडियन क्या आ रहा है? 75। अब ध्यान से देखो, आप इसको चाहे असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेते, भैया ये तो 75 ही रहता। सो आई कैन से माई वैल्यू ऑफ एम इज 75। दूसरी चीज आती है, दूसरी चीज आती है एफ। एफ क्या है? दैट अकर्स द मोस्ट, इसको एक्चुअली मोड कहते हैं। वैल्यू दैट अकर्स द मोस्ट, उसका नाम होता है मोड। तो कौन सी वैल्यू सबसे ज्यादा बार आ रही है? आपको दिख रहा होगा 78 सबसे ज्यादा बार आ रही है, तो मोड हो गया 78। और ए कहता है वो मीन है, ए इज द मीन। तो अब मीन कैसे निकालते हैं? मीन इज सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ वैल्यूज। ध्यान से सुनना फिर से एक बार, फिर से जैसे मैंने कहा था हर क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट बताता रहूंगा आपको, साथ साथ सुनते रहिएगा। सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज, लेकिन जरा सम करने की कोशिश तो करो। 66 plus 78 plus 75 plus 69, it's a little difficult to add all of them. इसीलिए देखिए, जब मुझे लगता है नंबर्स किसी एक के आसपास हैं, तो एक आसान तरीका होता है करने का, वो मैं आपको बताता हूं। क्या मैं क्या करता हूं? देखिए तकरीबन सभी 70 के आसपास है ना, तो सबको पहले 70 मान लो। कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, सातों को 70 मान लो, तो 7 7 7 7 7 कितना आ गया? 490। अगर सभी 7 के 7 नंबर 70 होते तो सम 490 आ जाता। उसके अलावा कितना हो रहा है? 66 में 4 कम है, 78 में 8 ज्यादा है, 75 में 5 ज्यादा है। मैं 70 से काउंट कर रहा हूं, 70 से कितना ज्यादा है कम है? 69 में 1 कम है, 69 इज 1 लेस। 78 में 8 ज्यादा है, 77 में 7 ज्यादा है और 70 में 0। तो कितना आ गया? 490 प्लस 8 माइनस 4 4 प्लस 5 9 माइनस 1 8 प्लस 8 16 प्लस 7 23। अब इस 23 को भी सातों में बांट दो, या ये कह लो 490 प्लस 23 कितना हो गया? 513। 513 को 7 से डिवाइड कर देते हैं तो आ जाएगा 73.28। सो मीन आ रहा है मेरा 73.28, एफ आ रहा है मेरा 78, एम आ रहा है मेरा 75। एफ लार्जेस्ट है, उससे छोटा है एम और उससे छोटा है ए, विच इज गिवन इन ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर मी। The right answer for question number 4 is equal to option B. क्या ये सबको समझ आ गया है? I hope you understood this thing as well, जो मैं यहां डिस्कस कर रहा था। जैसा मैंने कहा, हर क्वेश्चन में सिर्फ क्वेश्चन नहीं समझना, ये जो छोटी छोटी चीजें जो मेरा काम आसान करती हैं, सोच के देखिए अगर यही नंबर्स 669, 781, 752 इस टाइप के होते तो कितना आसान हो जाता अगर मैं सभी नंबर्स को 700 के आसपास मान लेता। तो अदरवाइज बड़े नंबर्स ऐड करने थोड़े से मुश्किल होते हैं। इट विल ऑलवेज मेक योर जॉब इजी। 75 मीडियन है, तो अगर 75 लेके करेंगे तो पता चल जाएगा कि लेस देन 75 ही आएगा,
ग्रेट। किशन कह रहे हैं पूरा सॉल्व ही क्यों करना है, मैं सीधा ये ना कह दूं कि यहां Unacademy. Let's crack it.